नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारे इस बजट स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में पेश हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और हमारे इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट के विविध प्रावधानों की कि क्या खास निर्मला सीतारमण के पिटारे से देश को मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास बजट हेडलाइंस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट। स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर सरकार ने दिया खास ध्यान। केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में दी गई बड़ी राहत। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की सालाना कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी टैक्स छूट हुई दोगुनी। केंद्रीय बजट में किसानों के लिए धन धान्य योजना का किया गया ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर की गई 5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय बजट में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास। ई व्हीकल और लिथियम आयरन बैटरी होंगी सस्ती। साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी ड्यूटी टैक्स किया गया खत्म। और बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान किया केंद्रित। रक्षा क्षेत्र में 6.81 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई लगातार बढ़ रही है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारा फोकस GYAN या ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। Our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies,
promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. केंद्रीय वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग को आयकर में बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट की घोषणा के मुताबिक इनकम टैक्स की नई रिजीम में 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए के स्लैब पर 5% और 8 से 12 लाख रुपए की इनकम पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न भी एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees
will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री ने कहा है कि ये विकसित भारत का बजट है। बजट भाषण में उन्होंने किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान किया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास को साकार करने के अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा किसानों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे किसानों पर बजट में ध्यान केंद्रित किया गया है और इनके विकास पर लगातार ध्यान दिया जाएगा। Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks 2nd largest globally in fish production and aquaculture.
Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. और बजट पर विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वे सभी इस बजट को सिटीजन फ्रेंडली बजट बता रहे हैं। और हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी इस समय CII के सदस्य सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विशेषज्ञ इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया बयान कर रहे हैं। बिल्कुल अंकुर, मध्य प्रदेश में बजट को लेकर क्या है, पूरे देश में बजट को लेकर क्या है। वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इस आम बजट को लेकर कैसा है ये आम बजट, क्या कुछ है बजट में खास, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ CII के स्टेट काउंसिल मेंबर डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी हैं। सिद्धार्थ जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज बजट पेश किया गया, देश का आम बजट, आप उसको किस तरह देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि ये बजट एक वाकई माइलस्टोन बजट के रूप में हमारे सामने आया है, क्योंकि ये विकसित भारत के तक पहुंचने का एक रोड मैप तय करता है। दूसरा, जो इंक्लूसिव सबका साथ सबका विकास वाली जो धारणा है, उसके अंतर्गत इसमें हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ चीजें आज वित्त मंत्री जी द्वारा दी गई हैं। और जो 4 हमारे महत्वपूर्ण पिलर्स हैं ग्रोथ के, ये बहुत अच्छी बात है कि चारों को इस बार प्रॉपरली हाईलाइट किया है और सबके लिए कुछ ना कुछ, जिसमें एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट पे जोर देना और एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो ये चारों पिलर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम इस बजट में किया गया है। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया ज्ञान का, गरीब, महिला, अन्नदाता, युवाओं को लेकर और खासतौर पर शिक्षा को लेकर इस बजट में आपको क्या लगता है, क्या दिया है सरकार ने? जी, आज की जरूरत को पहचानते हुए शिक्षा से जुड़े हुए बहुत अच्छे इस बजट में हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है उसको देखते हुए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन की गठन की घोषणा की गई है, जिसमें 500 करोड़ का बजट रखा गया है। एक बहुत अच्छी बात है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, जिससे इनोवेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग को बढ़ावा मिल सके, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 साल तक वो बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जो बहुत बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें भारतीय भाषाओं में डिजिटल और हार्ड कॉपी कंटेंट बनेगा और एजुकेशन को हम इजीली बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स में भी जो क्रेडिट गारंटी है वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। तो ये भी मुझे लगता है इनोवेशन और स्टार्टअप्स को आगे काफी बढ़ावा देगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की भी बात की गई है। तो स्किल्स और कुशल युवा, जो कि एक बैकबोन है हमारे विकसित भारत तक पहुंचने के लक्ष्य में, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की भी बात इसमें की गई है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट पे जो जोर है, एक्सपोर्ट पे जो फोकस किया गया है इस पूरे बजट में, जिसमें भारत ट्रेड नेट नाम का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा,
हमने देखा जो सरकार और भारत में क्रांति हुई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले, उसी कड़ी में एक नया ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। इससे एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा और बढ़ावा भी आगे मिलेगा। कौशल विकास का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, अब तो गरीब कल्याण मिशन भी मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। तो कौशल विकास को लेकर जैसे आपने स्टार्टअप में बात की है, सरकार लगातार पिछले 2-3 साल से कौशल विकास को लेकर खास तौर पर योजनाएं भी चला रही है। इस बजट से क्या डिफरेंट होगा, कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ये सरकार समझ गई है और जॉब क्रिएशन ही हमारी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। भारत ऐसा देश नहीं है जहां पे जॉबलेस ग्रोथ हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो जॉब क्रिएशन पे और रोजगार सृजन पे सरकार का लगातार फोकस रहा है। इस बजट में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन स्किलिंग, जिसमें कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स हमारे सामने आएंगी, उसको बनाने की बात की गई है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जिसमें फुटवेयर और लेदर सेक्टर में बड़ी मात्रा पे रोजगार सृजन और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके प्रमोशन को लेके बात की गई है। साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम को भी आगे बढ़ाने की बात की गई है, जहां पे फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें क्रेडिट एक्सेस बहुत इजीली देने की बात भी की गई है। और साथ ही साथ अगर हम कौशल की बात करें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन का जो युग है, उसमें स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाना और खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये लैब्स बनाई जाएंगी। 50,000 लैब्स का लक्ष्य लिया गया है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी गवर्नमेंट स्कूल्स तक ले जाने की बात की गई है। तो बहुत बड़ा एक हाईवे उपलब्ध होगा जहां पे हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी बातचीत स्कूल्स तक जो है वो पहुंचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कौशल विकास, रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इन तीनों पहलुओं पर इस बजट में काफी कुछ खास वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया है। मध्यम वर्ग के लिए कैसा देखते हैं आप इस बजट को? जी, मध्यम वर्ग के लिए मुझे लगता है हर बार मध्यम वर्ग थोड़ा ऐसा फील करता था कि शायद उनके लिए बहुत सारी बजट डायरेक्टली नहीं आती थी, पर इस बजट में तो वित्त मंत्री जी ने मुझे लगता है मध्यम वर्ग को बहुत प्रसन्न किया होगा। लगभग 12,75,000 तक की अब आय पर कोई भी टैक्स नहीं है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी टैक्स छूट दर को भी डबल किया गया है। तो पूरा और एक नया इनकम टैक्स बिल भी पेश होने वाला है, जिसमें कि काफी कुछ सरलीकरण और खास रहेगा। तो मुझे लगता है पूरा फोकस ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बचत एक मध्यम वर्ग के हाथ में छोड़ें और उस बजट के कारण जो इन्वेस्टमेंट, जो स्पेंडिंग, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में आएगी, उससे ग्रोथ और जीडीपी को बढ़ाने में भी काफी सहायता मिलेगी। तो मध्यम वर्ग के लिए डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से और कुछ जो चीजें हैं जैसे एलईडी हैं, टीवीज हैं और रोजमर्रा की यूटिलाइजेशन की बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें भी सस्ता करने की बात इस बजट में की गई है। बिल्कुल अंकुर, जिस तरह से सिद्धार्थ चतुर्वेदी बता रहे थे कि ये जो बजट है ये विकसित भारत का बजट है और खासतौर पर कौशल विकास और एजुकेशन को लेकर सरकार ने किया है। साथ में मध्यम वर्ग के लिए इस बार बजट में अच्छे खासे प्रावधान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए आशीष। निश्चित तौर पर काफी अहम जानकारी यहाँ पर सिद्धार्थ बता रहे थे कि हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ खास किया गया और खासतौर से मध्यम वर्ग को तो सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश निर्मला सीतारमण के इस बजट में की गई है। यहां रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं तो बजट से जुड़ी हुई कुछ और खबरें आपके साथ साझा करेंगे। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने की घोषणा की है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा कैंसर के इलाज की दवाएं भी सस्ती होंगी
और 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। वहीं भारत के फुटवेयर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवेयर के लिए योजना शुरू की जाएगी। 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद भी इससे होने को है। Comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste. और हमारे इस बजट विशेष बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर बजट हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट। स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर सरकार ने दिया खास ध्यान। केंद्रीय बजट में मध्य वर्ग को आयकर में दी गई बड़ी राहत। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की सालाना कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी टैक्स छूट हुई दोगुनी। केंद्रीय बजट में किसानों के लिए धन धान्य योजना का किया गया ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर की गई 5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय बजट में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयास। ई व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी होंगी सस्ती। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी ड्यूटी टैक्स किया गया खत्म। और बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष ध्यान किया केंद्रित। रक्षा मंत्री रक्षा क्षेत्र में 6.81 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। 4 बजे हम आपसे एक बार फिर मुखातिब होंगे और इस पूरे बजट के ऊपर समीक्षात्मक रूप से एक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कई विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से देश को मिला है, किसकी उम्मीद थी, क्या सपने अधूरे रह गए हैं और जो सौगातें अभी मिली हैं इनसे दूरगामी रूप से कैसे विकसित भारत को बनाने में मदद मिलेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार, ये है नारी शक्ति के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाधाओं को पार करने से लेकर रूढ़िवादी